Next we have the sources of raising finance. Means what are the sources, what are the different sources from which we can raise the different funds. We know the sources of raising finance on the basis of ownership. It will be categorized into two main categories. First is owners fund and second is borrowed fund, which we have already discussed. ओनर्स फंड को कहाँ कहाँ से हम रेज कर सकते हैं? थ्रू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, GDR means global depository receipt, ADR means American depository receipt, and last is IDR, that is Indian depository receipt. To raise the borrowed fund, what are the sources? First is issue of debentures, loan from financial banks, loan from commercial banks, public deposit, trade credit, and intercorporate deposit, that is ICD. So very first we have to study, that is equity share and preference share. These will be under the only one category. Means if we issue the share, it will under the category of equity and preference also. जब हम या कंपनी शेयर को इशू करती है तो वो दोनों तरह के शेयर्स को इशू करेगी एट अ टाइम. दे विल subscribe both the shares, means equity and preference also. So let's start. The very first is issue of shares. Share is the smallest unit in which owner's capital of the company is divided. A share is the interest of the shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability and interest. A share may also be defined as a unit of measure of a shareholder's interest in the company. कह रहे हैं शेयर क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि पूरे कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर. तो पूरी कैपिटल का जो हमारी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट होने वाली है उसका बहुत छोटा सा पार्ट, वो क्या कहलाता है? शेयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी गोइंग टू बी स्टार्टेड and they have the 5 lakh rupees which is going to be invested in the business. 5 lakh is the authorized capital, means the total capital which is going to be invested in the business. 5000 का एक बहुत छोटा सा अगर हम पार्ट निकालें, मीन्स 5000 या 500, तो वो 500 क्या कहलाएगा? वो शेयर कहलाएगा. एक पूरी कैपिटल का बहुत छोटा सा पार्ट, उसी को कहते हैं हम शेयर. ओके. A share is the interest of the shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability and interest. इस शेयर के ही बेसिस पे एक जो पर्सन होता है जिसके पास शेयर कंपनी के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर. कंपनी के क्या शेयर जिस भी पर्सन के पास जाएगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स कंपनी में कैसे एंटर करते हैं? बाय परचेजिंग दीज शेयर्स. यही शेयर के बेसिस पे ही कंपनी के जो अलग अलग पब्लिक के मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और फिर वो ओनर्स बन जाते हैं. और यही शेयर है जिनकी बेसिस पे हम लायबिलिटी या इंटरेस्ट को पे करते हैं. भाई हमने शेयर को इशू किया, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिनके पास मनी है उन्होंने शेयर्स को ख़रीद लिया. शेयर को ख़रीदा तो उनके पास, कंपनी के पास पैसे आए. अब वो जो कैश या फंड आया है उससे कंपनी क्या करेगी? अपनी लायबिलिटीज़ को, या जिन लोगों को इंटरेस्ट देना है, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना है, तो इन सबको वो पे करेगी. ओके. शेयर आर ऑफ 2 टाइप्स that we have already discussed, and I have already told you that there are 2 types of shares. First is equity shares and second one is preference shares. So starting with the equity shares, let's see, here it is written that, तो इक्विटी शेयर से स्टार्टिंग करते हैं. शेयर मीन्स the smallest unit in which share capital of company is divided and includes stock.
Equity share is a common security issued under permanent or owners fund capital. Equity shares are the most important source of raising long-term capital. The equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in the payment of annual dividend or repayment of capital. क्या रहे हैं शेयर जो कि पूरी कैपिटल का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट होता है इक्विटी शेयर, उसी का एक टाइप होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिस पे जो पर्सन इस इक्विटी शेयर को ख़रीद लेता है वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर हम इक्विटी और प्रेफरेंस को कंपेयर करें, इन दोनों शेयर, मान लीजिए मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर है और आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन गए। कंपनी पे भले ही आपका प्रेफरेंस ज़्यादा हो, आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, लेकिन राइट और कंट्रोल हमारा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज़्यादा होगा। और दूसरे शेयर की कंपैरिजन इक्विटी शेयर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। भले ही इनको प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले, इनको प्रेफरेंस शेयर के कंपैरिजन उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन इनसे हम इक्विटी शेयर के जो फंड होता है, इक्विटी शेयर का जो कैपिटल होता है, इनके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज कर सकते हैं। कह रहे हैं भले ही इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन इनसे क्या होता है, हम इक्विटी शेयर के फंड से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो कंपनी में, बिजनेस में काफ़ी टाइम तक हमारा यूज़ हो, इन्वेस्ट हो, ताकि उसकी हेल्प से हम फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीद सकें, परचेज कर सकें। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि जब भी पेमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इनके नाम से ही आप देखिए, प्रेफरेंस, जिनको प्रायोरिटी ज़्यादा हो, जिनका प्रेफरेंस ज़्यादा हो, तो डिविडेंड या कंपनी में प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और बचने पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो भाई अगर घर में, अब हम बात करें, अगर नॉर्मल हाउस होल्ड पे आए, आप बड़े हैं, आपसे बड़ा जो छोटा है, कोई भाई, कोई ब्रदर आपका, वो मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। घर पे कुछ बनता है, कुछ उसकी पसंद का, तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, उसे आपके ब्रदर को दिया जाएगा, और बचने पर फिर आपको दिया जाएगा, इन केस। ऐसा होता नहीं है वैसे जल्दी। तो क्या है यहाँ पर, प्रेफरेंस भले ही से उसकी है, लेकिन आपकी अपनी एक इमेज और अपनी एक इम्पोर्टेंस है। भले ही डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस को मिलता हो, लेकिन इक्विटी भी अपने एक ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बोला जाता है। ओके, तो ये बहुत नॉर्मल सा जोक टाइप का एग्जाम्पल था, इसको एग्ज़ाम में मत लिख दीजिएगा प्लीज़। अक्सर ये बच्चे क्या करते हैं, हमने क्लास में एग्जाम्पल दिया कुछ हाउस होल्ड से रिलेटेड या नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, तो उसको बच्चे वही एग्जाम्पल एग्ज़ाम में लिख देते हैं, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। ओके, मूविंग टूवर्ड्स, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिटर्न्ड ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड। कह रहे हैं जब बिजनेस या कंपनी की वाइंड अप का टाइम होता है, बंद होने का टाइम होता है, क्लोज होने का टाइम होता है, उस पर भी प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, सबसे पहले प्रेफरेंस को। अगर कोई ड्यू बचा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और सबको सेटल आउट करने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये चीज़ होती है इक्विटी शेयर्स की। Prior to the year 2000, the companies were allowed to issue equity shares with equal rights only. कह रहे हैं 2000 के बाद हर कंपनी ने ये सजेस्ट किया कि भाई इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रियल ओनर्स हैं, वो रिस्क भी बियर कर रहे हैं, बचने पर डिविडेंड मिलेगा, वाइंडिंग अप होने पे सबको मिलने के बाद उनको मिलेगा। तो इसके बेसिस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के ज़्यादातर राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए गए।
In the year 2000, an amendment was made in the Companies Act permitting companies to issue two categories of equity shares. 2000 के बाद कंपनीज एक्ट मीन्स उस टाइम पहले तो हमारा 1956 कंपनीज एक्ट चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमारा कंपनीज एक्ट नया आया 2013. तो अब जो सारी कंपनीज फॉलो करेंगी वो होते हैं कंपनीज एक्ट 2013. उनके हिसाब से इक्विटी शेयर्स को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया. दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके सबके सब राइट्स इक्वल हैं, इक्वल राइट्स होते हैं सबके जितने भी हैं. और दूसरे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड. और दूसरे इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होल्डर्स होंगे जिनको और इक्विटी शेयर होल्डर्स से हट के थोड़ा सा कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा. एक वो जिनको सारे राइट्स इक्वल, और एक वो जिनको थोड़ा सा डिफरेंट राइट्स और लोगों के और इक्वल इक्विटी शेयर होल्डर्स से हट के थोड़ा सा इनके राइट्स अलग होते हैं डिविडेंड के मामले में. ओके.